دیکھیں جی، یہاں سارا جو مقصد ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جانا میرا اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. اس نیشنل کاز کے اندر کنسنسس سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سب کا آن بورڈ، تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے، جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے، کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں، اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے، روزگار مل جائے، پاکستان آگے بڑھ جائے، اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفیٰ بھائی مطلب سے نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے. نہ میں کسی سیاسی دفتر میں قلعے میں جاتا ہوں. جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں، اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں. میرا اور مصطفیٰ صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں، ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں، بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی، اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا، ایسا ہی مصطفیٰ بھائی؟ تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے بغیر بتایا کہ بلاول صاحب بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسیپٹیو ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، انکلوڈنگ ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے. یہ ڈبیٹ ہم چلاتے رہیں گے، لیکن روز بندے مار دینا، روز انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا، روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف الیکشن لے لیا، اچھی اچھی بات کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ آ گئے، آپ نے کہا جی آپ ہمیں یہاں سپورٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپرزنٹیشن کے اندر ایک برج کا کردار ہے. وہ میں پوری طریقے سے اپنی پوری 1% جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کوشش پوری کروں گا، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی مطلب کے، کہ ان کی مینڈیٹ کا ریپرزنٹیشن میں کنورژن ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ فیڈرل کیوں نہ ہو. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں. نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں. ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے، وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے، ملک کے لیے بھی ضروری ہے. کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو، تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں. اس میں الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے، وہ بھی ایوالو ہو گئی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی. ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا، انہوں نے بھی اپنا وہ ڈسٹنس کر کے ایوالو کر کے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو یاد ہے، وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا، انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں، پاپولر ہوتی ہیں، تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول صدیقی صاحب کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے. اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہوائی، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی. اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی. سب
कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट, और जो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके, उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें TLP अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक़ है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, मेरा ANP से भी ताल्लुक़ है, मेरा चकरी साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा बाप पार्टी से भी ताल्लुक़ है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक़ है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफ़ा भाई आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ आ किए। और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफ़ाक़न मैं कराची का हूँ, लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है। तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब MQM के साथ हमारा टकराव था PTI का, और PTI में यहाँ आ नहीं सकती थी PTI, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, MQM बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज़ यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है ना इम्परमानेंट होती है, ये बात याद रखी जाए सियासत के अंदर। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज्जत एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं। और मैं इस सियासत के भी खिलाफ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज्जत से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ फिर आते हुए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बहरान भी मेरी गुजारिश होगी अपनी आला अदलिया से कि क्योंकि एक स्टेबलाइज मुल्क चल रहा है, एक कियोटिक सिचुएशन से हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं, उसमें वो भी हमारा साथ दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए, जहाँ जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ उनके स्टेक्स भी हमें पता है, वो अपना वो काम मुस्बत करें जिससे कोई कियोटिक सिचुएशन ना हो। तो जो हमने कानून बना दिए उसको रिस्पेक्ट करें, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसलों को रिस्पेक्ट करते हैं। और 239/5 मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह वो जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। और 239/6 ये बताता है, डाउट्स को भी ख़त्म कर देता है कि हमारे पास एज पार्लियामेंटेरियंस आवाम के वोट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये आइन और कानून के हवाले के तहत मैंने बात की है। और मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को भी सबको बिठाने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये बंदे मारना, बंदे गिराना, लाशें गिराना, पुलिस रेंजर्स का तमस्कर उड़ाना, इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाना मेरे ख्याल से बहुत ही नाजायज़ और बुरी चीज़ है। और जैसा मेरा खैर मकदम मुस्तफ़ा साहब ने, उनकी पार्टी ने किया है, वैसा ही खैर मकदम मेरा बिलावल साहब ने किया, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, मौलाना साहब ने किया है। और हम सब पार्टियाँ इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन ज़ाती हमारा झगड़ा नहीं है, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी कि हम गाली दे के ही ठीक करेंगे, हम गाली का जवाब गाली से देंगे। PTI के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे चेहरे, वो करना है हमने PTI को भी पैनिंग से कोशिश करनी है कि वो बचाए, अगर वो अपनी हरकतें सीधी कर लें, किबला अपना सीधा कर लें। और इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सज़ा तो उनको मिल रही है, जो उनको फंसा दिया गया या उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वो तो जो चीज़ उन्होंने 30 साल नहीं की वाफ की हैं। तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है। और आप सब पूरी कौम देख रही है कि उनके साथ क्या ड्रामा और गेम हो रही है, उनको मज़ीद बदतरीन जगह पे ले जाया जा रहा है। और जो
14 तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीजंस हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बदी गाला के बिल भरे, अब भी भरेंगे, और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक करें, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठोस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में MKM ने दिया है, आपने मुस्तफा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफकत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग PTI, वो अपने आप को आसमान की पार्टी समझती है, उनको भी बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से ही बात करनी पड़ेगी, पार्टियाँ ही फिर आगे बात करती हैं, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतज़र है, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम बजाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को साथ जाऊँगा, मैं इनके साथ भी जाऊँगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके, मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहाँ मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ, वहाँ अदालती निज़ाम में भी मुलाकात होगी, वहाँ बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा, मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफा साहब ने समझाती, बिलावल साहब ने समझाती। मौलाना साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ लेके चले।